Dr. Shiny Duggal, Deputy Director, Regional Center Delhi 2. On behalf of our Regional Center Delhi 2 and also on behalf of RC Cash, RC Delhi 2, welcome you all to this national webinar. Today, we are meeting virtually to celebrate a very special day for our motherland India. Yes, today is a National Technology Day, which we celebrate on 11th May every year to commemorate the successful nuclear tests conducted at Pokhran in 1998, as well as to recognize the achievements of Indian scientists, researchers, and engineers. It was established by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to honor the nation's scientific and technological advancements. IGNOU, being one of the biggest partners in nation building through its higher education initiatives, also contributes its share in the form of week-long celebrations for National Technology Day by organizing various activities across the country. As you know, our increased reliance on technology present both opportunities and challenges. While technology offer numerous benefits, it also introduces risks like privacy breaches, cyber attacks, etc. It has become quite essential to make people aware of concepts like cyber safety and cyber security, especially in the age of artificial intelligence. It is even more important for girls and women to get a tough shield against cyber stalking, cyberbullying, etc. Against this backdrop, we thought of organizing a webinar on the theme cybersecurity and cyber safety for women in the age of artificial intelligence. The resource person of today's webinar is Dr. Vinod Kumar Kanvaria. Sir, we welcome you, sir. Before we invite him for his talk, let me invite our very dear regional director, senior regional director, Dr. D.P. Singh, for his inaugural address. Sir, over to you. Uh, Thank you, Dr. Saini ji. First of all, I welcome on behalf of Regional Center Delhi to all of you, uh, especially Professor विनोद कुमार कनवरिया जी. उन्होंने अपना टाइम दिया हमारे जो है स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए. और चूंकि अभी ध्यान दें हम लोग तो सारी चीज़ें जो है ड्रिवन है टेक्नोलॉजी के थ्रू. हम लोग जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है एक तरह से. लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि उसका यूज हम लोग जो है किस ढंग से करते हैं. उसको जो है सही ढंग से उसका उपयोग करना हमको आना चाहिए. जैसा कि भी डॉक्टर साइनी जी ने कहा, साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हमको जो है ध्यान देनी पड़ती हैं कि उसका मिसयूज हो रहा है. खास करके जो है अगर देखा जाए तो जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल हैं, उनको जो है अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं तो कई बार जो है वो ट्रैप होने का चांस रहता है उनके. तो इसी आधार पे जो है आज का ये टॉपिक डिसाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोगों ने आमंत्रित किया है प्रोफेसर विनोद कुमार कनवरिया जी को. तो हम लोग चूंकि उनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं डॉक्टर साइनी जी से आग्रह करूंगा कि हम लोग जो है डिले नहीं करेंगे, हम लोग जो है उन्हीं को आमंत्रित करेंगे. थैंक यू. ओवर टू यू डॉक्टर साइनी जी. जी थैंक यू सर, थैंक यू. बिल्कुल हम सर को सुनने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं आज. तो मैं उनको इनवाइट करने से पहले ब्रीफली उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी. वैसे जो उनकी वन पेज बायोडेटा है वही इतना एग्जॉस्टिव है, लेकिन फिर भी मैं जानना मतलब बताना चाहूँगी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं कि हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं वो उनको सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस आर रिसोर्स पर्सन फॉर टुडेज वेबिनार, डॉक्टर विनोद कुमार जी. Dr. Vinod Kumar Kanvaria is a full professor in Department of Education, University of Delhi. He is PhD in Education with specialization in ICT, Educational Technology and Pedagogy of Mathematics. He has also obtained D.Lit in the subject education, and he did masters in three subjects, which are mathematics, education, and sociology. He has qualified UGC NET 6 times
in 5 different subjects, 3 times JRF qualified. He has qualified 3 times JRF. He has many awards and honors to his credit. First rank in MEd in Punjab University, 8th rank in Pune region of Navodaya Vidyalaya Samiti in class 8 of CBSE exam. Think CIQ AIM Award in in 2016 for top 100 awakened and innovative members of India by the Times of India in 2016. I'm so sorry. Uh, uh, in 2016, fourth in international course on sustainable development in business by the Open University of Mauritius and called in 2019. CIQ Smile National Award in 2021 for top 10 super multiple intelligence lead educators of India by the CIQ in 2021. Best Educationist and Researcher Award by the European Institute of Applied Research Estonia, Europe in 2021. Similarly, the list of his publication is also very exhaustive. 75 profile papers and articles in international and national journals, 21 international and national books, chapters in 62 chapters in national and international books, and he has been resource person for more than 250 conferences, workshops, and seminars. So I need to cut it short seriously, and I really I'm very I'm very pleased to invite Dr. Vinod Kumar Kanwaria ji for his talk. Over to you, sir. सभी को नमस्कार। डॉक्टर डीपी सिंह जी, डॉक्टर शाइनी जी, डॉक्टर मीना जी और जन जन का विश्वविद्यालय इग्नू, जिसे जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मौका दिया सभी से रूबरू होने का, बातचीत करने का, कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हम बातचीत करें। बहुत अच्छा दिन चुना है आप लोगों ने। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ब्रीफ में अपनी बात कहना चाहूँगा क्योंकि टाइम हम ऑलरेडी काफ़ी निकाल चुके हैं और 1 घंटे का हमारा सेशन है। सो मैं अपना वीडियो ऑफ करके, जिससे कि हमें अच्छे सिग्नल मिल सके, और इसके बाद मैं डायरेक्ट अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। वहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। एंटायर स्क्रीन, देन सेलेक्टेड, देन क्लिक ऑन शेयर, देन मिनिमाइजिंग दिस वन, इग्नोर, दैट्स ऑल। या सो उम्मीद है मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी सर, बिल्कुल जी। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है आज 2025, जिसमें हम आईसीटी के बारे में बातचीत करते हैं और एजुकेशन में आईसीटी की भी बातचीत करते हैं। तो आज का काफ़ी अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया गया है मुझे, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हालांकि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, लेकिन जहाँ महिलाओं की बातचीत होती है ये मुद्दा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम साइबर सिक्योरिटी की बातचीत करेंगे, साइबर सेफ्टी की बातचीत करेंगे, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन। वो विमेन स्टूडेंट्स हो सकती हैं, विमेन वर्कर हो सकती हैं, विमेन जो प्रोफेशनल्स हैं वो हो सकती हैं। तो सबके लिए ये काफ़ी हद तक इक्वल हम उन सबको मानते हुए उन पर हम बातचीत करेंगे। सो क्योंकि मुद्दा तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे डॉक्टर दीपी सिंह जी ने भी कहा कि मुश्किल है टेक्नोलॉजी के बिना जीवन के बारे में सोचना इन दिनों, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी से पहले साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी आता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो शायद हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रारंभ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ एक बातें हम इसमें करेंगे, जैसे कि सबके सब जानते हैं आज की तारीख में, चाहे एजुकेशन की हम बात करें, चाहे सोशलाइजेशन की बात करें, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने की बातचीत करें, या एक दूसरे से कनेक्ट होने की बातचीत करें, या नेटवर्किंग की बात करें, या अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात करें, जो कुछ भी उसमें अगर आप देखेंगे इंटरनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आजकल आ गया है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रहना चाहते हैं 24 आवर्स, और उसके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन साबित हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी फैसिलिटी आती है, ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ रिस्क भी आ जाती है। उनमें से बहुत बड़ी रिस्क है आजकल साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी। और जब महिलाओं की बातचीत होती है तो ये शायद रिस्क थोड़ा सा और बड़े स्तर पर चला जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने कि महिलाओं को बांध रखा है इस तरह से, या उनके बारे में कुछ इमेज बना रखी है, या उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा रखता है हमारा समाज, तो उनके बारे में ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो देखते हैं आज की बातचीत के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस समाज को महिलाओं के लिए भी साइबर सेफ और साइबर सिक्योर बनाया जाए। एक छोटा-सा रफ आइडिया देता हूँ मैं आपको, एक डिजिटल लैंडस्केप खींचना चाहूँगा आप लोगों के सामने। कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है जो ये कहता है कि हर 10 में से 9 जो टीनेजर्स हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं ग्लोबली। देन ओवर 60% ऑफ वुमेन ग्लोबली यूज़ द इंटरनेट रेगुलरली। बड़ा आसान है समझना इन चीज़ों को। ये जो है नेक्स्ट वन, फीमेल्स एजेड ओवर 13 स्पेंड ओवर 3 आवर्स डेली ऑनलाइन। तो देखिए कितना मतलब डेटा ये प्रूव कर रहा है कि वाक़ई हम लोग नेट से जुड़े रहते हैं, नेट से कनेक्टेड रहते हैं और नेट का इस्तेमाल केवल पढ़ने-पढ़ाने में नहीं, बल्कि एक-दूसरे से बातचीत करने में, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने में, हमारी प्रेज़ेंस साबित करने में कहीं न कहीं, हम लोग शायद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम महिलाएँ यूज़ करती है, पुरुष भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक बड़ा फ़ेमस है महिलाओं के बीच में, यूट्यूब है, यूट्यूब रील्स बनाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स आप देखेंगे आजकल, स्नैपचैट है, मैसेजिंग एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। आज की तारीख में अगर हम किसी से भी बातचीत करें, इवन पढ़ाई के बारे में भी, तो आप मानेंगे कि अगर कोई कहे कि मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता या मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है या मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ, तो हम उसे एक अजीब-सी निगाहों से देखते हैं कि आप कौन-से युग में जी रहे हैं। तो हम बेसिक एमेनिटीज़ के तौर पर लेते हैं कि उसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये चलाना आता ही होगा या व्हाट्सएप तो उसके पास होगा ही होगा। और अगर वर्किंग वुमेन है तो फेसबुक और लिंक्डइन का भी इस्तेमाल करती होंगी। लिंक्डइन का बेसिकली प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने में इस्तेमाल होता है, नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म जो ज़्यादातर महिलाएँ इस्तेमाल करती हैं। और जैसे ही फैसिलिटी आती है, तो कहीं न कहीं इसका अच्छा इस्तेमाल भी हुआ है। कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ है? लर्निंग में लोगों ने बहुत यूज़ किया इंटरनेट को, साइबर स्पेस को, सेल्फ एक्सप्रेशन एक-दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने में इन्होंने इस्तेमाल किया है, एंटरप्रेन्योरशिप में इस्तेमाल किया है, कम्युनिकेशन हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हम जब भी बातचीत करते हैं, तो कॉल कॉल भी आजकल इवन अगर आप देखेंगे तो कई जगह जहाँ सिग्नल्स नहीं आते मोबाइल सिग्नल्स, कोशिश ये करते हैं कि व्हाट्सएप से कॉल हो जाए, टेलीग्राम से कॉल हो जाए या ऐसे किसी और एप्लीकेशन से कॉल हो जाए, जो कि इंटरनेट फैसिलिटी बेस्ड होती है। देन काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम नेट सर्च करते हैं, अगर हमें कुछ जॉब चाहिए तब भी हम सर्च करते हैं, हमें कुछ भी सर्च करना हो, एकेडमिक कंटेंट सर्च करना हो, एजुकेशन के बारे में बातचीत करनी तो हम वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज़, गजेट्स जो अलग-अलग तरह के हैं, उनको हम सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू और इवन अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जब कभी हमें कहीं और मौका नहीं मिलता है या मिल पाता है, अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करने का, तब हम कहीं न कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी भी निकली हैं। इवन क्लास में कुछ बच्चे जो शाई होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, आधे घंटे में उन्हें औरों के सामने बोलने में झिझक होती है या उसी आधे घंटे में उनको बोलने का मौका या अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो भी कहीं न कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और जब ये फैसिलिटी है, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। अब हमेशा एक चीज़ देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो साथ में कुछ हैकर्स भी आ जाते हैं। साथ में कुछ वायरस जनरेटर्स भी आ जाते हैं। साथ में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं या टेक्निकल पर्सन भी आते हैं, जो इसका मिसयूज़ करना पसंद करते हैं। तो जैसे ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो कहीं न कहीं प्रीडेटर्स टेक्निकल टर्म है, जो कि इस्तेमाल होता है इन लोगों के लिए, जो कहीं न कहीं इस ताक में रहते हैं कि कैसे इंटरनेट का यूज़ करके लोगों को हार्म पहुँचा जाए, लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए। सो एक्सपोज़र टू प्रीडेटर्स। हैरेसमेंट बहुत कॉमन है, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, हर दिन आपको कहीं न कहीं हैरेसमेंट नज़र आता रहेगा इंटरनेट का यूज़ करके। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। अब जब इंटरनेट आया है, टेक्नोलॉजी आई है, तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन ना केवल क्रिएट की जा सकती है, बल्कि उसे बहुत आसानी से कम्युनिकेट करके दूर तक फैलाया भी जा सकता है। आप देखिए इवन एक ही इवेंट के लिए अलग-अलग तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी के साथ आपको वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, इंटरनेट पे आप ढूँढिएगा। बहुत ईज़िली अवेलेबल होंगे। एक कहता है नहीं तो एक कहता है हाँ, एक कहता है 2 तो एक कहता है 10। अब बड़ा ईज़िली मिल जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान हो गया है। और जो अनसोशल एलिमेंट है वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन सर्विलेंस, स्टॉकिंग, एक-दूसरे पे नज़र रखना, पीछा करना, इंटरनेट के थ्रू उसको स्टॉक करना, कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, अननेसेसरी जानकारी प्राप्त करके उसे परेशान करने की कोशिश करना। देन ऑनलाइन अब्यूज़, ये भी आजकल आम हो गया है। अगर आप देखिए तो भरे पड़े हैं लोगों के, जो अगर आप देखेंगे जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे। ट्विटर कमेंट्स है, यूट्यूब कमेंट्स है, वीडियोज़ कमेंट्स है, शॉर्ट कमेंट्स है, रील कमेंट्स है, आप देखिए भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट्स। जिसमें कि एकेडमिक या कंटेंट की बात की बजाय कुछ और चीज़ों पर ज़्यादा बातचीत की जाती है और सामने वाले को कहीं न कहीं पब्लिकली हार्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक रफ़ली एक पूरा लैंडस्केप है हमारे डिजिटल ऐज में, जब हम काम कर रहे हैं। और
जब ये बात होती है महिलाओं की तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 2 छोटे से टर्म है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, हमें लगता है दोनों एक ही हैं, लेकिन हल्का-सा अंतर है इसके अंदर। जब कभी डिवाइसेज़ और नेटवर्किंग की बातचीत होती है, डिवाइसेज़ यानी जो मशीन्स हैं, हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका मॉडेम है, आपके ये सारे जो डिवाइसेज़ हैं, या जो नेटवर्किंग है, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शंस है, ठीक है? इनकी जब बातचीत होती है, इनको जब सेफ और सिक्योर करने की बातचीत होती है, तो हम साइबर सिक्योरिटी की बातचीत करते हैं, तब वो टर्म साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। मालवेयर, फिशिंग और हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि जिनके साथ डीलिंग होती है जब हम साइबर सिक्योरिटी की बातचीत करते हैं। देन साइबर सेफ्टी इंडिविजुअल की बात करता है, ह्यूमन बीइंग की बातचीत करता है, एक जीते जागते इंसान की बातचीत करता है, क्योंकि मशीन अपने आप में काफ़ी नहीं है, इंटरनेट अपने आप में काफ़ी नहीं है। ह्यूमन बीइंग को जब हार्म होता है, उसकी पर्सनल वेलबींग को जब हार्म होता है, उसकी प्राइवेसी को हार्म होता है, उसकी मेंटल हेल्थ को हार्म होता है, तब हम जो बातचीत करते हैं उस वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है मशीनों के साथ-साथ। मशीनें तो हमें सिक्योर करनी ही करनी है, डिवाइसेज़ नेटवर्क सिक्योर करना है, साथ में ह्यूमन बीइंग की जो उसका स्टेटस है, उसकी मानसिक शांति है, उसे भी कहीं न कहीं हमें सेफ रखना है, तब ये टर्म हम साइबर सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें तो उसमें हम कि किसी को अब्यूज़ ना हो, कोई हरास ना हो, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, किसी की ग्रूमिंग ना की जा सके, ऑनलाइन अब्यूज़िंग ना हो वगैरह-वगैरह, या साइबर स्टॉकिंग ना हो सके, या किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को ना हो। ठीक है? तो ये दोनों टर्म हैं। और जब विमेन की बात आती है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक आज हम विमेन के बारे में बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोशियो कल्चरल बाउंडेशंस बहुत सारी हैं महिलाओं पर अभी भी। हालाँकि हम ऐसे युग में हैं जब महिलाएँ बहुत प्रगति कर रही हैं, डेवलप हो चुकी हैं, सोसाइटी भी काफ़ी ओपन माइंडेड है और महिलाएँ पढ़ भी रही हैं। इवन अगर आप देखें डिफरेंट बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में महिलाएँ टॉप भी कर रही हैं। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जो सोसाइटी हमारी है, वो अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दकियानूसी बची हुई है, उसमें अभी भी कहीं न कहीं अंतर है। आप माने ना माने, लेकिन अंतर है, ठीक है? और जब ऑनलाइन बातचीत होती है तो ज़्यादा टारगेटिंग होती है, बहुत आसान होता है ऑनलाइन टारगेटिंग करना किसी को भी। महिलाओं के बारे में थोड़ी ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए सिक्योरिटी को लेकर। अब क्या-क्या, अब आज की तारीख में पहले हम बातचीत करते थे कि डिवाइसेज़ होनी चाहिए, फिर हम बातचीत करते थे इंटरनेट हर एक के पास होना चाहिए, फिर हमने बातचीत की अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, लेटेस्ट डिवाइसेज़ होनी चाहिए। आज की तारीख में जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एआई पर बातचीत करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब जब एआई अगर हमारे फील्ड में आ गया है, पहले एआई से इतनी परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि एआई कुछ एक लोगों के हाथ में था। उस तक जो एक्सेस था, उसकी जो रीच थी, वो केवल कुछ एक चंद लोगों तक थी, जो उसको हैंडल करना जानते थे। तो एआई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन आज की दिक्कत है कि छठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। कॉलेज में तो हर कोई एआई का इस्तेमाल कर ही रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो। यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर असाइनमेंट्स आजकल एआई के थ्रू बनाए जा रहे हैं। रिसर्च पेपर्स इवन, रिव्यू पेपर्स इवन एआई के थ्रू लिखे जा रहे हैं। एसेज़ एआई के थ्रू लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब, और कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट एआई से बनाया जा रहा है, टेक्सचुअल कंटेंट बनाया जा रहा है, इमेजेस क्रिएट की जा रही हैं, पिक्चर्स क्रिएट की जा रही हैं, इवन एनिमेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो ये एआई का कमाल है, लेकिन एआई जब हर एक के हाथ में है, तो इसकी थ्रेट्स भी बढ़ गई है कहीं न कहीं। जब इसकी रीच और एक्सेस बढ़ गई है, तो थ्रेट्स भी कहीं न कहीं बढ़ गई हैं। कुछ एक थ्रेट जो आजकल आपने सुनी भी होंगी, बहुत न्यूज़पेपर में आता भी रहता है, पहला है डीप फेक्स। मतलब डीप फेक में ऐसे वीडियो और इमेज बनाए जा सकते हैं किसी का चेहरा इस्तेमाल करके, जो उसने कभी किया ही ना हो। वो सोच भी नहीं सकता कि वो वहाँ था भी, या उसने ऐसा कुछ किया भी है, या कुछ ऐसा कर भी सकता है। इस तरह के डीप फेक वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। फिर उसको उनको ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पब्लिक शेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक कोई एक्ट्रेस थी, उसको इस तरह से मतलब ह्यूमिलिएट किया गया। उसके ऐसे वीडियोज़ बनाए गए जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे, या मतलब उसको हार्म पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं। उस चेहरा किसी और का था, किसी और के चेहरे पे उस एक्ट्रेस का चेहरा लगा के उसे बदनाम किया गया, और वीडियोज़ था प्रॉपर। तो डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। देन ऑटोमेटेड हरासमेंट, बोट्स ऐसे जनरेट हो गए हैं, बोट्स ऐसे सॉफ्टवेयर या डिवाइस, वो मशीन, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई देती रहती हैं, जिसके आधार पे उसे फीड किया जाता है, जिस डेटा के आधार पे। तो जो विमेन्स का सोशल मीडिया, ऑटोमेटिकली फ्लडिंग ऑफ मैसेजेस उन पर होता है कहीं न कहीं। तो जिससे उन्हें हरास किया जा सके। देन एआई ड्राइवन सर्विलेंस, स्टॉकिंग होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है। हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स जो है, बेसिकली उन्हें मतलब रीइन्फोर्स उन्हें किया जाता है, और कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं कि ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं हरासमेंट हो, उनकी स्टॉकिंग हो, उनके बारे में गलत चीज़ें, गलत धारणाएँ क्रिएट की जा सके, गलत चीज़ें फैलाई जा सकें। स्टॉकिंग टैग है। देन एआई चैटबॉट्स फॉर ग्रूमिंग, ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी बातचीत जानबूझ के क्रिएट की जा सकती है। इवन जैसे पहले कभी मानते थे कि अगर आपने व्हाट्सएप से चैटिंग की है तो बिल्कुल जेन्युइन होगी, अगर आपने टेलीग्राम से की है, अगर आपने फेसबुक से की है तो मतलब ऑब्वियसली जेन्युइन चैटिंग होगी, जेन्युइन मैसेजेस होंगे। लेकिन अगर आप सच में देखें, आजकल ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं,
आप किसी भी व्हाट्सएप चैट को मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। किसी का भी नाम डालते हैं सेंडर में, किसी का भी नाम डालते हैं रिसीवर में, और कोई भी मैसेज आप जनरेट कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही आपको इंटरफेस नजर आएगा, आपको लगेगा रियल व्हाट्सएप चैट है। तो देखिए मतलब कहाँ तक चीजें पहुंच रही है, क्योंकि हम और आप आज भी व्हाट्सएप को बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हैं एनक्रिप्शन के थ्रू। लेकिन ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसके थ्रू फॉल्स स्क्रीनशॉट्स क्रिएट किए जा सकते हैं बड़े इजीली, और इसके लिए कोई ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। सिंपली एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें टाइपिंग कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि इमेज डालनी है इमेज डाल दीजिए, डीपी डालनी है डीपी डाल दीजिए, बहुत कुछ आसान हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आ रही हैं, इस तरह एल्गोरिदम्स हो गए हैं जो मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से चीजों को, लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। देन साइबर बुलिंग बॉट्स, ऐसे बॉट्स हैं जो लगातार केवल साइबर बुलिंग पर ही फोकस किए कर रहे हैं। उनका यही काम है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके, कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो मैसेजेस लोग करते हैं, उनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको टारगेट करते हैं, उनके ऊपर उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी साइबर बुलिंग करते हैं लगातार। तो अगर एआई आया है एजुकेशन में हमारे आपके बीच में, और हम मासिव यूज कर पा रहे हैं, पब्लिक यूज कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी बढ़ रही है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आजकल एआई से कुछ भी जनरेट हो सकता है, और अगर कुछ भी जनरेट हो सकता है तो पहली ही बार में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करके, पाकर, रिसीव करके उसके बहकाव में ना आए, उस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। हर इंफॉर्मेशन को कम से कम 3-4 जगह आप क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें, तब आप आगे बढ़े। इवन कुछ मैसेजेस आते हैं और आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, लेकिन वाकई वो जेन्युइन नहीं होते हैं। विमेन पर स्पेसिफिकली और ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं असर डाल रही है नेगेटिविटी एआई की या इसकी थ्रेड्स की। जेंडर बेस्ड हरासमेंट हो रहे हैं, विमेन आर ट्वाइस एज लाइकली एज मेन टू बी विक्टिम्स ऑफ इमेज बेस्ड अब्यूज। इमेजेस आप देखिए, इमेज तो मॉर्फ करना, ब्लर करना, चेंज करना इतना आसान हो गया है ना कि हम बता नहीं सकते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फ्री में अवेलेबल हैं। आप किसी भी विमेन का फोटो डालकर खाली आप उसमें कमांड दे दीजिए, प्रॉम्प्ट दे दीजिए, लिख दीजिए कि मैं ये करते हुए इसे देखना चाहता हूँ। आप देखिए इमेज अकॉर्डिंगली एकदम चेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, क्लोथिंग आप चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस आप चेंज कर सकते हैं। इवन किसी बहुत ही दुख भरे माहौल में अगर किसी विमेन की कोई फोटो है, आप उसको हंसता हुआ दिखा सकते हैं उसी माहौल में। इमेज मॉर्फिंग इतना आसान हो गया एआई के थ्रू। और जब, क्योंकि महिलाओं से आज भी सोसाइटी समाज कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करता है, आज भी करता है, माने ना माने, तो जेंडर बेस्ड हरासमेंट कुछ ज्यादा मतलब वो ज्यादा आसान हो गया है एआई के थ्रू। देन बॉडी शेमिंग एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये तो आमतौर पे हर कोई जानता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा होगा तो अच्छा मानेंगे, ऐसा होगा तो बुरा होना चाहिए, और इमेज बड़े इजीली क्रिएट की जा सकती हैं, एआई का यूज किया जा सकता है। देन रिवेंज पॉर्न एंड सेक्सटॉर्शन, ये बहुत आसान है। कहीं से आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कभी कोई रिलेशनशिप होता है और बाद में टूट जाता है कहीं ना कहीं, तो जो अपोजिट सेक्स है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उसे हार्म करने के लिए ये सारे काम करता है। उसके इंटीमेट कंटेंट लेता है, उसे पब्लिक करने की धमकी देता है, उसे मिसयूज करता है, उसे चेंज करता है, और इवन कई बार तो यही से मॉडिफाई भी कर देता है, कुछ ऐसे कंटेंट भी बना देता है और पब्लिक करता है जो कभी हुए ही नहीं थे, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। देन इमोशनल इम्पैक्ट, इसके बाद अगर ऐसा कुछ हार्म हो जाए तो टोटली डिप्रेस हो जाता है पर्सन, एंग्जाइटी से भर जाता है कहीं ना कहीं, और कई बार तो सेल्फ हार्म भी कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि इस खुद ने खुद को हार्म कर लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग तो हार्म कर ही रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी पर तो हो ही रहा है, वो तो अटैक हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इस हद तक उसे मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है विमेन को कई बार अक्सर, कि वो इस हद तक पहुंच जाती है। देन ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये भी हो रहा है, साइबर फ्लैशिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसे इंटीमेट कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं, पब्लिक किए जा रहे हैं, उसे मॉर्फ किया जा रहा है। देन पर्सनल थ्रेट्स दी जा रही हैं, हरासमेंट इन वर्चुअल वर्क प्लेसेस, वर्क स्पेसेस एंड एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स, इस पर भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इवन आपने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एक स्टूडेंट ने टीचर को धमकी दी थी कि मैडम मैं आपके वीडियोस और पिक्चर्स में मैं ओपन डाल दूंगा, या मैं आपके खिलाफ इस तरह कंटेंट जनरेट करके उसे उसे फैला दूंगा। मतलब ब्लैकमेलिंग तक के कुछ इंसिडेंसेस आए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये आम बात हो गई आज। आप किसी भी दिन का अखबार उठा के पढ़ लीजिए, एक भी दिन शायद आपको मतलब नहीं मिलेगा जिसमें ऐसी कोई घटना आपको कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देगी जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके हार्म करने की कोशिश ना की गई हो। रेपुटेशन डैमेज तो बहुत आसान है। आजकल हम लोग सब पता है बहुत इतना फास्ट भाग रहे हैं कि, और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, इतनी ज्यादा कि मतलब इंफॉर्मेशन फ्लड हमारे पास आ रहा है। आप मान के चलिए 1 मिनट में आपके 500 इमेजेस आती हैं, 500 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, 100 तरह के वीडियोस आ जाते हैं। आपके मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसे 1 घंटे में, आधे घंटे में देख के आगे बढ़ूं, ध्यान से आगे देख के बढ़ूं। तो हम और आप क्या करते हैं, आंख मूंद कर उस कंटेंट पर प्राइमा फेसी विश्वास कर लेते हैं और उसको सच मान के आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से पब्लिक जो रेपुटेशन है वो बहुत डैमेज होती है इससे।
हम कहीं जानना ही नहीं, हम मतलब एक्चुअली देखा है तो जानना चाहे तो भी इतना वक्त ही नहीं है कि हम उसकी इन डेप्थ में जाए, पता करें कहीं ये मॉर्फ तो नहीं है, कहीं ये फर्जी कॉल तो नहीं है, कहीं ये फर्जी इमेज तो नहीं है, फेक तो नहीं है, डीप फेक से तो नहीं बनाई, एआई से तो नहीं बनाई, ये सारी चीजें। तो एक छोटी चीज हम लेकर जाएं आज कम से कम, कि आंख मीच कर किसी भी इंफॉर्मेशन पर विश्वास ना करें जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू प्राप्त हुई हो। हम खुद उसके गवाह हैं, आंखों से हमने देखा है, आई विटनेस है, तब तो ठीक है। अदरवाइज हर कोई इन्फॉर्मेशन, इवन गजट्स ऐसे फर्जी बना दिए गए, कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं गजट जैसे दिखते हैं पर वो एक्चुअली गजट होते नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर टाइप के दिखते हैं व्हाट्सएप पर वो होते नहीं, वो फेक होते हैं। तो बहुत आसान है इन चीज़ों को बनाना। तो हम कहीं भी किसी की बात पर आंख बीच कर विश्वास ना करें। देन मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, ये फिर लास्ट में होता ही होता है। जब इतनी सारी चीज़ों आप डेली जूझेंगे, जब पूरी सोसाइटी किसी को हेट नज़रों से देखेगी, उसके बारे में गलत इमेज बनाएगी, उसे एकदम अलग-थलग कर देगी अपने आप से, तो कहीं न कहीं पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं हार्म होती है। एंग्ज़ायटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इवन 1-2 केसेस तो ऐसे हैं कि स्कूल में एक केस था कि फाइनली कि उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा, जिसके जिसके लिए एआई का यूज़ करके फेक वीडियोज़ और इमेजेस बनाई गई, स्प्रेड की गई, फेक न्यूज़ क्रिएट करके स्प्रेड की गई। तो कई बार सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, और जब विमेन की बात होती है और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो क्यों ना हम और आप मिलकर ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां कहीं ना कहीं एक विमेन के लिए भी सेफ साइबर एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें। कुछ केस स्टडीज हैं, केस वन है, यूएस की बात है। एक टीनेज जो गर्ल थी, उसे डी फेक पॉर्न उसके स्कूल ग्रुप ने ही शेयर कर दिया था बनाकर। उसका लड़की ऑलमोस्ट बिल्कुल बिल्कुल पागलपन के कगार तक पहुंच गई थी। एक और केस है, इंडिया का केस है, जिसमें एआई चैटबॉट ने जो है टीन बॉय बन के किसी लड़की के साथ बातचीत की, टीनेजर गर्ल के साथ बातचीत की, और कोशिश की उसे ब्लैकमेल करने की, परेशान करने की। अब रिसेंटली ये केस था जो अब तो पुराना हो गया है, रश्मिका मंदाना जी के बारे में आपने सुना होगा। उनका एक वीडियो आया था कि एक्चुअली किसी और का वीडियो जो था, उनका फेस लगा के इस तरह बताया गया, इस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। तो ये केसेस लाइव हैं और रियल लाइफ में होते हैं। तो एक छोटा-सा सजेशन है कि आज की तारीख में अगर एआई से मतलब इंटरनेट के थ्रू, या हम कहें कि मैकेनिकल वे में अगर आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, पिक्चर्स हो, वीडियो हो, एनिमेशंस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो, आँख मीच कर उन पर विश्वास ना करें, उनको एक बार चेक ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ कुछ भी ऐसा मिले, जो कि उस पर्सन से अनएक्सपेक्टेड हो, तो पहले उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करके उससे सपोर्ट करने की कोशिश करें। जैसे बीच में आया था कि फेसबुक और ईमेल आईडी बहुत हैक हो रहे थे। फेसबुक और ईमेल का यूज़ करके ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे थे कि मैं इस परेशानी में हूँ, या ऐसा है, या ऐसा हो गया, आप मुझे पैसे भेज दीजिए, हाउ आर यू, या फिर आपके पिक्चर्स मेरे पास हैं, आपकी इमेजेस मेरे पास हैं, आपके वीडियोज़ मेरे पास हैं, आप मतलब ब्लैकमेलिंग वाले केसेस, और ये बहुत आम हो गए थे। तो कहीं भी आँख मीचकर विश्वास ना करें। सबसे पहले सोर्स उसका ज़रूर ढूँढें कि उसका सोर्स कौन है, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है, क्या वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है? क्या वो ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है? और तुरंत उस पर्सन से पहले पर्सनली कॉन्टैक्ट करें कि वो उसी ने भेजा है या नहीं भेजा, वो मैसेज या ईमेल या टेक्स्ट वगैरह। ये ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि अगर अगर वाक़ई ये सब कुछ नहीं होगा, आप अगर आँख मीच कर विश्वास कर लेंगे किसी पर कि वाक़ई ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं जो पर्सन इन कंसर्न है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझ सकता है। अगर वो एजुकेशन में के फील्ड में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, वो ड्रॉप आउट हो सकता है, स्कूल छोड़कर जा सकता है परेशान होकर, एजुकेशन से भी विथड्रॉ कर सकता है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ तो क्रिएट होंगे ही होंगे, नो डाउट, क्योंकि कहीं न कहीं हम आज भी हम सोशल एनिमल्स हैं, हम सोशल सामाजिक प्राणी हैं कहीं न कहीं। आज भी हमें सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए ही होता है। हम लाख कोशिश करेंगे, हम सॉलिट्यूड में जी लें, अकेलेपन में जी लें, लेकिन आसान नहीं है। आज भी हमें सोसाइटी का एक्सेप्टेंस चाहिए, सोसाइटी का साथ हमें चाहिए कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। देन एंग्ज़ायटी आती है, डिप्रेशन में कई लोग चले जाते हैं, कई लोग तो ज़िंदगी भर उनसे नहीं उभर पाते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल डिसीज़ेज़ हो जाती हैं इस तरह से। ट्रॉमा में लोग चले जाते हैं। इतना एक्सट्रीम ट्रॉमा होता है कि लोग ज़िंदगी भर उन घटनाओं से उभर नहीं पाते। और जब हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, हर कोई इमेज मॉर्फ कर सकता है, हर कोई वीडियो जनरेट कर सकता है, फेक वीडियो जनरेट कर सकता है, फेक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकता है, तो मान के चलिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कितना आसान है हर एक के लिए अगर क्रिएट करना, तो मान के चलिए बहुत आम बात है कि किसी को भी इस तरह से परेशान किया जा सके साइबर वर्ल्ड में। तो कहीं न कहीं हमें और आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अब डिजिटल लिटरेसी में हम क्या कर सकते हैं कि हर एक को ये चीज़ पता लगे? तो सबसे पहले तो ये है कि ये मान के चलें कि भारत की सारी महिलाएँ एक ही सिचुएशन में नहीं रहती हैं। रूरल विमेन के अलग इश्यूज़ होंगे, उसका बैकग्राउंड अलग होगा, अर्बन का अलग होगा। उसमें भी अगर आप देखें इंटीरियर में है वो अलग होगा, जो हाईवे से कनेक्टेड हैं वो उनका अलग होगा। दूसरा, जिनके पास डिजिटल डिवाइसेज़ हैं उनका एक अलग होगा पैमाना, और जिनके पास बहुत सारी डिवाइसेज़ हैं उनके पास अलग होगा। कहीं एक पूरी फैमिली में एक डिवाइस है
और कहीं एक फैमिली में 10 डिवाइस है, उनका पैमाना अलग होगा, तो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं ये। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें होते हुए डिजिटल लिटरेसी हमें कहीं न कहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि आज भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं, जो नहीं जानती, मोबाइल चलाना जानती हैं। चलाने में इतना है कि कॉल आएगी तो कॉल अटेंड कर लेंगी और अगर किसी को मैसेज भेजना है तो जो माइक होता है उस पे क्लिक करके रिकॉर्ड करके वॉइस नोट्स भेज सकती हैं। अभी भी उन्हें नहीं पता प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके सेटिंग कैसे बदली जाए। ईमेल में उन्हें नहीं पता कि सिक्योरिटी सेटिंग्स भी होती है, प्राइवेसी सेटिंग्स होती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है और कैसे-कैसे परमिशंस को डिनाई किया जाता है, उन्हें नहीं पता है। डिजिटल हाइजीन के बारे में उन्हें नहीं पता है। डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे अपने डेटा को बचाया जाए, नहीं पता उन्हें। तो कहीं न कहीं डेटा प्राइवेसी को लेकर, सेफ ब्राउज़िंग को लेकर लिमिटेड अवेयरनेस है अभी भी आज भी। देन रूरल वुमेन और अर्बन वुमेन में बहुत फ़र्क है। जहाँ अर्बन वुमेन आज काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो गई हैं डिवाइसेज़ यूज़ करने में, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी प्राइवेसी सेटिंग्स अभी भी इश्यूज़ बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, तो एक तो वुमेन है, ऊपर से रूरल बैकग्राउंड है। उनके पास एक्सेस भी नहीं होता डिवाइसेज़ का। अगर उन्हें कोई समस्या है तो कोई समझाने वाला भी आस-पास नहीं है। अर्बन एरिया में फिर भी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी से हेल्प माँगेंगे, 10 लोग आपको समझा देंगे। रूरल वुमेन के पास तो दोनों चीज़ें हैं। कई बार पूरी फैमिली में एक मोबाइल डिवाइस होती है और उसमें भी कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो डिजिटल डिवाइड कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन जेंडर बायसनेस बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे एजुकेशन में, आप भले ही कहें कि सब मोबाइल चलाना जान गए हैं, डिजिटल डिवाइसेज़ यूज़ करना जान गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप कोडिंग के फील्ड में देखेंगे, टेक फील्ड में देखेंगे, कंप्यूटर टेक फील्ड में देखेंगे, आज भी महिलाएँ बहुत कम हैं। बहुत कम महिलाएँ कोडिंग के फील्ड में आपको मिलेंगी, टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको मिलेंगी। आप देख लीजिए डेटा उठाकर कहीं का भी। तो कहीं न कहीं जेंडर बायसनेस है इस फील्ड में और कोडिंग अगर आएगी तभी हम साइबर वर्ल्ड की ज़्यादा अच्छी समझ डेवलप कर पाएँगे। देन रेस के आधार पे, क्लास के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे अगर ये चीज़ अगर हम और देखें तो ये जो खाई है दोनों के बीच की, हैव नोट्स और हैव्स के बीच में, ये और ज़्यादा बढ़ जाती है कहीं न कहीं। और ज़्यादा बहुत मतलब गैप आ जाता है इस बारे में कहीं न कहीं, अगर हम इन चीज़ों को भी ध्यान से देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रोल ऑफ एआई इन प्रोटेक्शन क्या-क्या हम कर सकते हैं, क्या-क्या किया जा सकता है? कुछ आसान चीज़ें जो हम कर सकते हैं, कंटेंट मॉडरेशन। एआई डिटेक्ट्स हेट स्पीच, न्यूडिटी एंड अब्यूजिव मैसेजेस। एआई बेसिकली एल्गोरिदम पर काम करता है। एल्गोरिदम आप समझ लीजिए कमांड। हम जो कमांड देंगे, जो चीज़ उसको बताएँगे, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, उसके आधार पे एआई आपका काम करता है। तो जब हम इतना एआई पे काम करें, तो क्यों ना एआई को हम ऐसा बनाएँ कि ऑटोमैटिकली खुद ही डिटेक्ट कर ले कि न्यूडिटी वाला कंटेंट कौन-सा है, हेट स्पीच वाला कंटेंट कौन-सा है, अब्यूजिव मैसेज मैसेज वाला कंटेंट कौन-सा है, ऑफेंसिव मैसेजेस वाला कंटेंट कौन-सा है, किसी को ब्लैकमेलिंग वाले कंटेंट कौन से हैं, हार्म करने वाले कंटेंट कौन से हैं, स्टॉकिंग करने वाले कंटेंट कौन से हैं, किसी को डिफेम करने वाले कंटेंट कौन से हैं। तो ये किया जा सकता है, इस पर थोड़ी बातचीत की जा सकती है। मतलब एआई को क्यों ना हम एल्गोरिदम ऐसे बनाएँ जो ये काम आसानी से कर ले। देन थ्रेट डिटेक्शन। एआई लगातार मॉनिटर करे सस्पिशियस बिहेवियर, जैसे भी ऐसा नहीं कि जिस अकाउंट से एक बार अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, वो हमेशा अच्छे मैसेजेस ही आते रहेंगे। कई बार वो हैक भी हो सकता है, उसे कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा हर अकाउंट पर लगातार नज़र बनाए रखे एआई और देखे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट तो नहीं हो चुका है। ठीक है? तो बायस इन एल्गोरिदम है ही है, यही वजह है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी समस्या है। किसी एक भाषा में अगर आप देखेंगे तो वो शब्द बहुत अच्छे माने जा सकते हैं, दूसरी भाषा में वही अब्यूज़िव वर्ड्स हो सकते हैं। इवन अगर आपका एआई उस भाषा को जानता ही नहीं है ज़्यादा, तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि कहीं अब्यूज़िव लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं की गई है, कहीं किसी को हार्म करने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली लैक ऑफ कंटेंट एआई डिटेक्शन तो है ही है। जब तक कि एआई का डेटाबेस बहुत बड़ा नहीं होगा, एलएलएम का जो डेटाबेस है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहते हैं, उसका अगर डेटाबेस बहुत बड़ा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी भाषाएँ नहीं होगी, तो बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना कि ये वर्ड जो यूज़ किया गया पर्टिकुलर ये अब्यूज़िव है या नहीं है। आप देखिए इवन भारत में भी बहुत सारी भाषाएँ हैं, किसी एक भाषा में वो शब्द बहुत अच्छा माना जाएगा, तो हो सकता है दूसरी भाषा में बहुत बुरा शब्द माना जाए वो। कई बार ये भी बहुत बड़ा फेर होता है, तो किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलएलएम इस तरह की भाषा को डिटेक्ट करे। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, जब भी कोई समस्या होती है तो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा और कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार एक कल्चर में जो चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है, दूसरी कल्चर में बहुत बुरी मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, वैश्विक स्तर की अगर हम बातचीत करें तो हर कंट्री की चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, तो एआई को इस तरह से बनाया जाए, एआई के एल्गोरिदम को इस तरह बनाया जाए कि जो वो कल्चरली सेंसिटिव होकर काम कर सके, इंक्लूज़न का कांसेप्ट लेकर काम कर सके, सबके हित के बारे में सोच सके।
कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आप जानते हैं इंडिया में भी है। आईटी एक्ट सबने सुना होगा, पॉस्को एक्ट सबने सुना होगा, आईटी रूल्स 2021 सुना होगा, सेक्शन 60 है जो अब खत्म हो गया है, इसकी बातचीत सुनी होगी, पीओएसएच एक्ट की बात सुनी होगी। इसमें भी अगर जैसे अगर आप क्या कहते हैं इसमें इग्नो के बारे में बातचीत करें, रीजनल सेंटर तो आरसी कैश बना हुआ है, रीजनल सेंटर कमेटी ऑन एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, मतलब कमेटी बनी हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में जो काम कर रही है और एग्जिस्टिंग लॉज के आधार पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रोविजन नहीं है या हमारे पास चीजें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब इसे एक्टिवेट करने की बारी आती है, कहीं ना कहीं इसे इस्तेमाल या अप्लाई करने की बारी आती है, तब शायद कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी अवेलेबल है, कोपा है, COPPA, GDPR है, सीड्रॉ है, देन ऑनलाइन सेफ्टी बिल्स है, मतलब बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं कि लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी ऑफ विमेन के बारे में स्पेशली हैं बहुत सारे। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ आती है कि बहुत कम ऐसे लॉ हैं जो एग्जैक्ट एआई को टारगेट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नॉर्मल आईसीटी वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आजकल तो एआई ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हिंदुस्तान के ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा, कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहाँ लोग एआई का इस्तेमाल ना कर रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ओनली चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, तो कुछ परप्लेक्सिटी के बारे में भी जानते हैं और बाकी के बारे में भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, सो बेसिकली लॉस तो है, पर एनफोर्समेंट इसका जहां होता है वो काफी हद तक वीक है। और जब जेंडर सेंसिटिव एरिया की बात होती है तो कहीं ना कहीं लॉ थोड़ा और जिस तरह से एनफोर्स किया जाता है वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देता है। महिलाओं की कई बार बातें नहीं सुनी जाती है। कई अगर आप देखेंगे अर्बन एरिया को अगर आप छोड़ भी दें थोड़ा बहुत, तो जैसे आप अर्बन एरिया से बाहर निकलेंगे, देखिए महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। एनफोर्समेंट होता है पर महिलाओं को ध्यान में रख के नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं। और इसमें भी इवन जैसे पॉलिसी भी अगर आप देखेंगे तो जेंडर को ध्यान में रख के कम बनाई गई है। कॉमन पॉलिसी ज्यादा है जिसमें जेंडर इक्विवेलेंस की बात की गई कहीं ना कहीं, या सब जेंडर को एक समान मान के बातचीत की। पर हमें मानना पड़ेगा कि भले हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, लेकिन विमेन आर मोर वल्नरेबल टू सच व्हाट वी से इंसिडेंसेस या सच जो ये चीजें इनके इनके प्रति कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा ये चीजें हार्म करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। लॉज ऐसे बना सकते हैं जिसमें एआई को ध्यान में रखा जाए, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ विमेन ऑनलाइन, जो विमेन ऑनलाइन ज़्यादा काम करती है उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए। और कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए इन पॉलिसीज और लॉज के अंदर, जो हम कर सकते हैं। अब अगर पढ़ाई और एजुकेशन की बात करें तो पेरेंट्स कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, एजुकेटर्स कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, फैमिलीज में कुछ रोल प्ले किया जाता है, वर्क स्पेसिस पे, इंस्टीट्यूशन पे हम कर सकते हैं। ये कुछ काम हम कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चों से फ्री होकर बातचीत करें, हर दिन पूछें बाहर क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स देखें कि अगर बच्चे घबरा रहे हैं तो उनसे पेरेंट्स की तरह, दोस्त की तरह व्यवहार करें। तो और एक्सेसिव सर्विलेंस उन पर अवॉइड करें, हर समय नजर रखने वाला, क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स से बताते हैं हम नजर रख रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट होकर चीजें छुपाना शुरू कर देता है। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड की जाए एज अ फ्रेंड कि बच्चा आकर उन्हें हर बात शेयर करे। जिससे जल्दी अगर आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि बच्चा आपका किसी समस्या में है, किसी समस्या से ग्रसित है, तो आप उसे इजीली जल्दी टैकल कर पाएंगे। और कहा जाता है कि जितना जल्दी डिटेक्शन होता है, जितना जल्दी इलाज शुरू होता है, उतना जल्दी उस बीमारी से बचने के चांसेस होते हैं। एज एन एजुकेटर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपने करिकुलम में डिजिटल सेफ्टी डाल सकते हैं। आप देखिए, एक अजीब लगेगा आपको कि हमने अभी भी करिकुलम बदला, बहुत अच्छा आया। हमने उसमें योगा भी जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया, म्यूजिक जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया, फिजिकल एजुकेशन जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया, वोकेशनल एजुकेशन या फाइन आर्ट जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए, क्योंकि इन सब में भी आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यों ना हम करिकुलम के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी भी एक कंपलसरी पार्ट कर दें। जैसे हम इन स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हर बच्चा जाने साइबर सेफ्टी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। इग्नो का बीए है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी कंपलसरी पार्ट बना दीजिए। बीए, बीएससी, बीकॉम है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, इवन बीएड अगर इग्नो का हो रहा है या एमएड हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जोड़ दीजिए कि करिकुलम में कंपलसरी आपको साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप 50 नंबर का पेपर पढ़ाइए छोटा सा, लेकिन कंपलसरी कीजिए। कहीं ना कहीं करिकुलम में कंपलसरी पार्ट बना दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्योंकि जैसे आप ऑप्शनल करेंगे, गारंटी है, पूरा विश्वास है, लोग उसे ऑप्शनल ही मान के ट्रीट करेंगे, उसे छोड़ देंगे कहीं ना कहीं। देन टीचर्स कहीं ट्रेंड नहीं है। इवन कई टीचर्स ऐसे हैं कि आज भी इवन वो गूगल मीट भी ढंग से ओपन नहीं कर पाते, उन्हें किसी और की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमने देखा कहीं एक टीचर जो थी गूगल मीट क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी, लिंक क्रिएट नहीं कर पाए, फिर किसी स्टूडेंट से क्रिएट करवाया। तो क्लास जब हो रही थी तो बच्चे व्हाट्सएप पे डाल रहे थे, मैडम प्लीज लेट मी इन, मैडम प्लीज लेट मी इन। तो मैडम थोड़ी देर बाद कहती है प्लीज लेट मी इन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वाकई है अवेयरनेस की, मतलब इनकी कमी है। तो क्यों ना टीचर्स को भी ट्रेंड किया जाए कि जिससे वो टेक्नोलॉजिकली साउंड बने, और टेक्नोलॉजी जब साउंड बनेगी तभी वो ऑनलाइन अब्यूज को थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी में केवल बातें काफी नहीं है, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट।
फैमिलीज क्या क्या कर सकती है, ओपन डिजिटल कन्वर्सेशन, बातचीत, सब लोग मिलके बैठ के बातचीत कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, 2-3 जनरेशन एक साथ बैठ सकते हैं, दादा बैठ सकते हैं, पोता बैठ सकता है, पोती बैठ सकती है, पापा मम्मी साथ में बैठते हैं, चाचा चाची बैठ सकते हैं। मतलब जब भी टाइम मिले इकट्ठे होकर बातचीत करें और बातों से पता करने की कोशिश करें कि कहीं कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा किसी के साथ, साइबर अब्यूज तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, कोई साइबर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही है किसी के साथ, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है किसी को साइबर वर्ल्ड के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। देन वर्क प्लेसेस पर हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट ऑनलाइन सेफ्टी कोड्स एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल हरासमेंट। हम बाकी हरासमेंट की तो बात कर रहे हैं, हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की तो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी या वर्चुअल हरासमेंट की हम कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल डेवलप हो जाना चाहिए कि जैसे अगर कोई पर्सन टेंशन में दिखे, डिप्रेशन में दिखे, वो क्या करे, किससे मिलने जाए, या साइबर स्टॉकिंग अगर उसकी हो रही है या साइबर फ्रॉड उसके साथ हो रहा हो, किससे कॉन्टेक्ट करे, कैसे कॉन्टेक्ट करे। कुछ ऐसा प्रोटोकॉल हम बना सकते हैं अपने लेवल पर। आरसी कैश से मैं निवेदन करूंगा ऐसा कुछ बने तो और अच्छा रहेगा, स्पेशली वुमेन को ध्यान में रखते हुए। देन इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज और एनजीओ मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं कि हर एक जो वीमेन है, किसी भी एज की, स्कूल लेवल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओ वगैरह हो, कहीं पर भी हो, या किसी वर्क प्लेस पे, ऑफिस में हो, वो इन सब चीज़ों को जाने और अपने आप को साइबर फ्रॉड से और साइबर मतलब हैकिंग से इन सब से बचा सके। एम्पावरिंग वीमेन थ्रू अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयर करेंगे तो समझ बनेगी, समझ बनेगी तो इनडेप्थ नॉलेज होगा, इनडेप्थ नॉलेज होगा तो धीरे धीरे उसे ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी तो फिर वो और एक्सप्लोर करेंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और वो इनको इजीली इनसे डील कर पाएंगे। क्या क्या काम हम कुछ एक कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आरसी दिल्ली 2 ने आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर सोचा कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी की बातचीत लोगों से करवाई जाए। तो इस तरह के वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, कैंपेन्स हो सकते हैं, सेल्फ डिफेंस टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं। इवन कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकती है, जैसे कि हम बाकी के लिए तो योगा के लिए करवाते हैं, टाइक्वांडो के लिए करवाते हैं, और भी कई चीज़ों के लिए करवाते हैं। क्या हम इसके लिए भी कुछ करवा सकते हैं कि कुछ सेल्फ डिफेंस टूल्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए, और या टूल्स हम डेवलप करें। रोल मॉडल्स को अलग अलग टाइम पर बुलाया जाए, जब कभी मौका मिले ऐसी विमेन्स को बुलाया जाए जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हो, एथिकल हैकर्स हो, साइबर लॉयर्स हो, तो उनको एज अ मेंटर या तो बच्चों के साथ कहीं अटैच कर दें, लर्नर्स के साथ अटैच कर दें, महिलाओं के ग्रुप के साथ अटैच कर दें, या वक्त वक्त पर जब जब टाइम मिले उनका कुछ सेशन करवाया जाए। पीयर सपोर्ट एक ऐसा जैसे कम्युनिटी, या जिसको हम कहते हैं सोसाइटी, जैसे सिविल सोसाइटी, जैसे सिविल सोसाइटी मतलब स्टूडेंट सोसाइटीज होती है। आपने देखा कॉलेज में स्टूडेंट सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी है, आपका कंप्यूटर सोसाइटी है, मैथमेटिकल सोसाइटी है, मैथमेटिकल ग्रुप है। इसी तरह हम साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी सोसाइटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसा करें जिसमें महिलाओं को सिग्निफिकेंट रोल उनको दिए जाए कि वो कैसे डील करें, उनके साथ बातचीत करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर अगर हम ध्यान दे पाए, देखिए महिलाओं की साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ्टी हम बरकरार रख पाए तो मान के चलिए पूरे संस्थान की साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी हम बरकरार रख पाएंगे, माने ना माने। और जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप किसी विमेन को पढ़ा देते हैं तो पूरी फैमिली पढ़ जाती है, कई जनरेशंस पढ़ जाती है। वो इसके अंदर भी है कि किसी महिलाओं को अगर आपने साइबर सिक्योर, साइबर सेफ्टी के बारे में अवेयर कर दिया, उसको इक्विप कर दिया, तो मान के चलिए उसका पूरा परिवार साइबर सेफ और साइबर सिक्योर हो जाएगा। उसके जो बच्चे, यंग जनरेशन है, वो तक साइबर सिक्योर, साइबर सेफ हो जाएंगे। देन कम्युनिटी एंड टेक इंडस्ट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, बहुत सारी बनती है। हम क्या क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेटर एआई मॉडरेशन पे काम कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अच्छे एल्गोरिदम बनाए जाएं, ट्रांसपेरेंसी हो हर सिस्टम में, कहाँ मतलब एनक्रिप्शन भी हो, साथ में ट्रांसपेरेंसी भी हो कि कोई आपका मैसेज पढ़ नहीं पा रहा है, कोई आपका डेटा चुरा नहीं पा रहा है, और चुराए तो पता चलना चाहिए कौन आपका मैसेज देख पा रहा है वगैरह, कौन सा सिस्टम कौन कब यूज कर रहा है, ये हर एक को पता होना चाहिए, जिससे कि ये सब चीजें कर सके। कम्युनिटी में हम एनजीओ, जो हमने पहले भी कहा है कि एनजीओ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो प्रमोट भी कर सकते हैं, अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, और साथ में पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप जो है, मतलब पार्टनरशिप को लेकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर कुछ नया भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके थ्रू डिजिटल एथिक्स आप प्रमोट कर सकते हैं, इंक्लूसिविटी का कंसेप्ट आप अडॉप्ट कर सकते हैं, सबको बराबर माने, सबकी सेफ्टी पर ध्यान दें, या दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी भी मिल जाए, इंडस्ट्री भी मिल जाए, गवर्नमेंट भी मिल जाए, तो करिकुलम भी बने और साथ में फील्ड में इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल सेशंस भी हो, तो जिससे कि और ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी और ज़्यादा इक्विप होगी कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी। रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉलिसी लेवल पर हम नई पॉलिसी बना सकते हैं, नए लॉज बना सकते हैं, नए रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी की बातचीत की जाए, जो बहुत ज़्यादा जेंडर सेंसिटिविटी की बातचीत करें। देन अवेयरनेस कैंपेन करवाएं। देन मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम टेक प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन जो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेती हैं विदाउट हमारी परमिशन के, या परमिशन जबरदस्ती लेती हैं जबकि उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं होती और हमारा डेटा चुराती है। तो कहीं ना कहीं ये लॉज ये तय करें कि अगर इस टाइप की एप्लीकेशन है तो इससे ज्यादा डेटा ये नहीं ले सकती, ओनली एसेंशियल डेटा ही लेगी, बाकी के लिए परमिशन मांगेगी तक नहीं।
क्यों होता क्या है कि जो भी एप्लीकेशन बनता है सारी परमिशन आपसे मांग लेता है, आपके कैमरे की, आपके वॉइस की, आपके माइक की, आपके स्क्रीन की, आपके ड्राइव फोल्डर की, आपके डेटा की, आपके फाइल्स की, सारा मांग लेता है, जबकि वास्तव में उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं होती है। और जब हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो हम एक्सेप्ट करके ओके करके खत्म कर देते हैं। हम जानते हैं इनकी परमिशंस क्या होती है मोबाइल के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनाया जाए कि ओनली वही परमिशन आए, वही परमिशन का ऑप्शन खुले जो उसके लिए मैंडेटरी है। जैसे ट्रू कॉलर के लिए अगर कॉलिंग के अलावा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है तो कॉलिंग के अलावा कोई परमिशन उसका नहीं आना चाहिए, ये परमिशन आप उसे दे रहे हैं, यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। एजुकेशन में हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड करिकुलम बनाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं, कैंपेन करवाते हैं, जो हमने पहले बातचीत की है, और टाइम टाइम पर अब टेस्टिंग भी करें, क्योंकि हमारे फील्ड में पॉसिबल है कि आपने जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करा आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, 1 महीने बाद दोबारा फीडबैक ले सकते हैं, 3 महीने बाद रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सारे हम करें और लगातार एनकेज करें विमेन को कि वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, साइबर सेफ्टी के फील्ड में, कोडिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर भी बनाए, क्योंकि एजुकेशन का जो फील्ड है काफी हद तक मोटिवेट कर सकता है अच्छा करियर एडॉप्ट करने के लिए। देन ग्रास रूट लेवल पर क्या क्या करते हैं, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है, एनजीओ के साथ मिलकर कर सकते हैं, अलग अलग कैंपेन चलाए जा सकते हैं, दौड़ रन करवाया जा सकता है, बीच में अवेयरनेस टेस्टिंग प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं। और ऐसा ना समझे कि वीमेन की सेफ्टी केवल वीमेन के ही हाथ में है, नहीं तो हमारा एक सोसाइटी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। हम हमेशा ये मानेंगे कि विमेन आर मोर वल्नरेबल और मेन ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो मैन को भी इनवाइट करें, मेल्स को भी इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में, या ऐसे ग्रुप के साथ में आप कोई सोसाइटी बना रहे हैं साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी, उसमें मेल्स को भी रखिए, मेल्स को भी इनवाइट कीजिए, मेल्स को भी डिस्कशन में इनवाइट कीजिए कहीं ना कहीं, जिससे कि वो सीखें कि हर एक का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये चीज आगे भी फैलाए कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल जो हमारी बातचीत है आज का कंक्लूजन यही है कि द डिजिटल वर्ल्ड must be a place of opportunity, not danger, for women especially. And in the AI era, AI means artificial intelligence era, cyber security must prioritize gender equity. सेफ डिजिटल स्पेसेस आर अ ह्यूमन राइट, नॉट अ प्रिविलेज। जो हम कहते हैं ना कि ये तो किसी किसी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर वो पर्सन जिसके पास मोबाइल का एक्सेस है, हर वो पर्सन जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, हर वो पर्सन जो लैपटॉप पे काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, टैबलेट पे काम करता है, हर वो पर्सन, उसका कहीं ना कहीं हमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए एज अ बेसिक एम्यूनिटी। ये नहीं कि किसी किसी को मिलना चाहिए, नहीं, हर एक को मिलना चाहिए। ठीक है, गूगल अपने लेवल पर काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपने लेवल पर काम कर रहा है, एप्लीकेशन अपने लेवल पे काम कर रही है, प्ले स्टोर अपने लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये काम करना पड़ेगा कि हम सबके लिए एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ की ये जो एप्लीकेशन है ये किसी को हार्म ना करे, ये टेक्नोलॉजी किसी को हार्म ना करे, और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस या इससे बचने के जो रास्ते हैं वो सबके लिए उसका राइट हो, ओनली प्रिविलेज ना हो। Final thoughts are, with the right education, right policies, and right support systems, we can create a cyber safe world for the next generation. Of course, yes, आज अगर हम सीखेंगे, जैसे हमने कहा ना कि माताएं और बहनें अगर सीखेंगी, विमेन अगर सीखेंगी, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली साइबर सेफ और साइबर सिक्योर हो जाएंगे। हम कहते हैं महिला को पढ़ा दीजिए, महिला को सिखा दीजिए, पूरा परिवार इक्विप हो जाएगा कहीं ना कहीं। परिवार का हर एक मेंबर, अब जैसे अगर माँ अपने बेटे बेटी को सिखाएगी तो मान के लिए जब वो बड़े बन के अच्छे सिटीजन बनेंगे, फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, वो अच्छा जब बनेगी सिटीजन, अच्छा नागरिक, तो बहुत अच्छा नागरिक बनेगी, और ऑटोमेटिकली एक के थ्रू हम कई को टारगेट करके पूरी सोसाइटी को साइबर सिक्योर, साइबर सेफ बना सकते हैं कहीं ना कहीं। सो लेट अस बिल्ड इंक्लूसिव टेक एंड एम्पावर वीमेन टू नेविगेट द वेब विद कॉन्फिडेंस, कि हर कोई कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करे। इवन आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर लोग डर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक था कि अभी एक ईमेल मिली थी, किसी महिला एसोसिएट प्रोफेसर को कहीं से कॉल आई कि आपने हमसे उधार ले रखा है, ऐसा, मतलब बाकी फैकल्टी मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं कि आपकी उन महिला अध्यापिका ने हमसे लोन ले रखा है, और फिर उनके बारे में बहुत सारी बातचीत गलत तरीके से की जा रही थी। इवन कई बार कॉल आता है कि आपके खिलाफ थाने में केसेस हैं, और ये वास्तविकता है आज की तारीख में। होता है हर 10 में से 4 लोगों ने ऐसे फोन कॉल्स अटेंड किए हो जो फेक हो। तो ये कहीं ना कहीं अगर हमें पता रहेगा और हम टाइम पर साइबर सिक्योरिटी के मतलब स्टेप्स अगर ले लेंगे, प्रोविजंस ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद हम एक अच्छा वर्ल्ड बना पाएंगे। सो थैंक यू इग्नो, जन जन का विश्वविद्यालय, द पीपल्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू डॉक्टर डीपी सिंह जी, डॉक्टर शाइनी जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर मीना जी। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। टाइम मुझे कहा कहते हैं संडे है, थोड़ा फास्ट रखिएगा पेस को, और क्योंकि संडे वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी आप लोग आज यहाँ आए, हम और आप रूबरू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मुझे इन्वाइट करने के लिए, एक बार तहे दिल से दोबारा धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनोद, आप
आपका जो ये टॉक था बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत कुछ डिटेल में आपने बता दिया, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपने ली और इतनी बारीकी से सब चीज़ों को समझाया। और इंसिडेंटली मैं एक आरसी कैश की चेयरपर्सन भी हूँ, तो जो आपने हमें सजेस्ट किया कि हम लोगों को एक प्रोटोकॉल की तरफ काम करना चाहिए और हम लोगों को मतलब ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, और ये सब हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम अपने रीजनल डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब इस दिशा में भी हम लोग प्रयास करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा और रुकिए, हाँ संडे है, लेकिन आपका जो टॉक था बहुत ही एंग्रॉसिंग था, कोई जल्दी जल्दी यहाँ से लीव नहीं कर पाया। तो अगर किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ हम अभी जो हमारा सेशन है क्वेश्चन के लिए खुल गया है, मैं और मेरी कलीग डॉक्टर मीना सिंह इसको मॉडरेट करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर ले लीजिए प्लीज़। किसी का कोई प्रश्न है? If anybody has any question, please ask the resource person. डॉक्टर शाइनी, विनोद सर से मेरा भी एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहूँगी सर। जैसे आपने साइबर क्राइम्स एंड एआई पावर्ड थ्रेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया, तो अगर कभी कोई गलती से, कई बार हम अनजाने में भी कुछ कॉल्स रिसीव कर लेते हैं या मैसेज का रिप्लाई करते हैं या कोई लिंक आता है तो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एक खास तौर से मैं उन छात्रों के लिए भी पूछ रही हूँ, ताकि कई बार इस वीडियो को हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करें, तो जो भी हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनके लिए भी ये लाभप्रद होगा ये इसका आंसर सर। तो प्लीज़ इसका जी, काफ़ी अच्छा सवाल है और वाक़ई हम में से बहुत सारे लोग इससे ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके हैं और हमारे साथ ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करें, कुछ एक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब भी कभी हम साइबर वर्ल्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और बचना चाहते हैं ऐसे प्रीडेटर से, तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर मामले में। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे मैसेजेज आते हैं कि ये लोग ही इंटरनेट पे वेबसाइट बनाते हैं और ऐसे मोबाइल नंबर देते हैं जो फेक होते हैं, और आप नेट से सर्च करके उन्हीं को आप कांटेक्ट कर लेते हैं, जो फर्दर हमारा हरासमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सबसे पहले आएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास मेल आ रहा है कहीं से, तो पहले आप ये पता करें वो मेल आया कहाँ से है, जिसे कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिएगा कि अक्सर ऐसे मेल आते हैं कि ओके, आई एम प्रोफेसर सुष्मिता लखियानी, हेलो विनोद, हाउ आर यू, मुझे आपसे अर्जेंट कोई बातचीत करनी है एंड आई एम हेड एंड डीन सपोज। तो ऐसा नहीं कि आप कंटेंट पढ़ के तुरंत आगे बढ़ जाएं। मेरा ये कहना है, पहले कंटेंट पढ़ने की बजाय पहले सोर्स को देखें एक बार, देखें फ्रॉम में क्या है। जब आप फ्रॉम में देखेंगे आप श्योर हो जाएंगे ये उनका ईमेल आईडी है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और जिस नंबर से मैसेजेज आ रहा है, हम में से ज्यादातर लोग एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं या फ्रॉड के शिकार होते हैं, वो दो ही वजह से होते हैं। या तो वो ईमेल होता है किसी का, या मोबाइल टेक्स्ट होता है, या मोबाइल कॉल होती है। ज्यादातर ये 3-4 चीजें होती है, isn't it? हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, जबकि कंटेंट की बजाय पहला फोकस कीजिए आया कहां से है। जैसे अगर आपको किसी को कहीं से कॉल आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रू कॉलर चेक करते हैं, isn't it? लेकिन ट्रू कॉलर काफी नहीं है। ट्रू कॉलर के साथ समस्या ये है, जिस पर्सन ने कॉल किया वो अपना नंबर जिस नाम से सेव करेगा, आपको वो नाम दिखाई देगा। इवन आपको डीसीपी दिखाई देगा, पर वो डीसीपी नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में कोई छोटा मोटा 10th क्लास पास लड़का होगा जो साइबर फ्रॉड कर रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ईमेल आप जरूर चेक कीजिए कहां से आया है, क्या ईमेल आया है, उसकी बजाय इंपॉर्टेंट है कहां से आया है, पहली चीज। दूसरी बात, मोबाइल में भी आप ये देखिए कि अगर आपको टेक्स्ट आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कहीं से, तो कहां से आ रहा है। तो पहला काम, एक काम कीजिए, ट्रू कॉलर में जाइए, उस नंबर को व्हाट्सएप पे पहले कॉपी कीजिए, या उसका एक बार व्हाट्सएप ओपन कीजिए। व्हाट्सएप से उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्या है क्या नहीं है। उसका डीपी देख लीजिए, डीपी का अंदाज बता देगा। उसका जो अबाउट और स्टेटस है वो आपको थोड़ा आइडिया दे देगा कि फ्रॉड तो नहीं है, इजंट इट? उसके अलावा एक और तरीका है, जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल, जिसको हम यूपीआई एप्लीकेशन कहते हैं, आप उस नंबर को यूपीआई में जाके एक बार पेस्ट करके देखिएगा। आपको इतना अजीब लगेगा, जिसका रियल नेम कुछ और होगा और ट्रू कॉलर पे कुछ और नाम होगा। ट्रू कॉलर पे लिखा होगा किसी विमेन का नाम और विमेन की फोटो डीपी लगा रखी होगी। आप वहां जाके देखें कि वो तो बाबूलाल प्रसाद दिखलेगा कहीं ना। तो एक तरीका है, उसको कॉपी कीजिए और वहां पर जाकर पेस्ट कीजिए जहां से आप उसको पता कर सकें। तो यूपीआई एप्लीकेशन अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है हम लोगों को। आप यूपीआई एप्लीकेशन खोलिए, उसमें वो मोबाइल नंबर वहां पे पेस्ट कीजिए, मोबाइल वाले में अपने आप देखिए उसका नाम आ जाएगा, किस नाम से वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यूपीआई में। और मान के चलिए बैंक में आपका नाम किसी का भी गलत नहीं होगा, फेक नहीं होगा।
तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि वेबसाइट भी जब आप सर्च करें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू देखिए कि साइबर सेल का नंबर क्या है, साइबर सेल का एड्रेस क्या है, साइबर सेल का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करके, जैसे पहले बीच में फ्रॉड हुआ था, आपको अजीब लगेगा जान के, गूगल पे लोग सर्च करते थे और जस्ट डायल निकल आता था, और जस्ट डायल के ज्यादातर नंबर फेक होते थे। ऊपर से वो साइबर फ्रॉड करते थे जो नंबर जस्ट डायल पर दिखते थे। तो जस्ट डायल जैसी एप्लीकेशन है या ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जो इस पे ऑलरेडी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी है पास्ट में, उन पर विश्वास ना करें, बल्कि गूगल से उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं। साइबर सेल पे जाएं तो साइबर सेल की पुलिस की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, दिल्ली पुलिस की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस है, गुजरात पुलिस है, मतलब इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके थ्रू अगर आप जाएंगे लिंक ढूंढते हुए, तो आपको सही ईमेल आईडी मिलेगा कंप्लेंट करने के लिए, सही मोबाइल नंबर मिलेगा, सही प्रोटोकॉल मिलेगा, सही सेट ऑफ प्रोसीजर मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये कि एक तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे अगर आप जरा सा भी अलर्ट हो गए, विश्वास कीजिए आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, लालच में ना फंसे। जो काम आपने नहीं किया है उसके लिए अगर आपको मैसेज आ रहा है, और तो लालच में ना फंसे, उसके आधार पे कोई कार्रवाई ना करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। जैसे एक मैसेज आया कि आप 2000 की लॉटरी जीत चुके हैं, 25,000 की लॉटरी जीत चुके हैं, जबकि आपको पता है आपने तो लॉटरी ली ही नहीं है। या आपको आया कि आपने सिटी मॉल में कुछ खरीदारी की थी, आपका कूपन निकला है जिसमें 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा, या आप प्राइज जीत चुके हैं, जबकि आपने तो खरीदारी की ही नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपने नहीं की है, उससे रिलेटेड अगर ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें पैसे की बात की गई हो, लेन-देन की बात की गई हो, तो प्लीज उन चक्रों में ना फंसे और अपने आप को साइबर सेफ रखें। उनको डिलीट कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, उनको रिपोर्ट करना सीखें। तो मोबाइल पर भी ब्लॉक एंड रिपोर्ट की फैसिलिटी है। अगर आपको कोई भी संदिग्ध नंबर नजर आता है, तुरंत उसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए मोबाइल एप्लीकेशन में। ट्रू कॉलर में भी ये ऑप्शन है, मोबाइल फोन कॉल में ये ऑप्शन है, व्हाट्सएप में भी ये ऑप्शन है, हर एक जगह ये ऑप्शन है। आप उसको यूज करें और इमीडिएटली यूज करें, जिससे दोबारा वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इजी वे में। और साइबर सेल से जब भी कांटेक्ट करें, ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लेकर करें, किसी और के दिए हुए नंबर से या किसी और ग्रुप पर आए हुए नंबरों से कांटेक्ट ना करें। एक ये तरीका हो सकता है। थैंक यू मीना जी, काफी अच्छा सवाल था और ये सबका कंसर्न है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया। और आजकल हम देखते हैं कि एक आता है पोस्ट ऑफिस से बार बार एसएमएस कि आपका कुछ सामान आया है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, अदरवाइज आपका सामान वापस चला जाएगा। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी और का सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। कुछ लोग अगर ऑनलाइन है तो उनसे भी सवाल ले सकते हैं, अगर कोई और किसी चैनल पे है तो। फेसबुक पे कोई कमेंट्स है किसी के? दीपाली, एक बार फेसबुक चेक कर लो, हम लोग का ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज़ रुचि शर्मा। सर मेरा एक सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि हैकिंग तो ऑलमोस्ट आजकल सभी लोग कर रहे हैं, एज वी ऑल नो। सो सम पीपल आर लाइक कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं, हमारा मोबाइल व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पर्सनल अकाउंट को हैक कर लेते हैं। तो उसको हम किस तरीके से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि येस हमारा फ़ोन हैक हुआ है। एक कहता है कि ऐसे पता लग जाता है कि व्हाट्सएप पे ओटीपी आ जाता है, या किसी भी उस तरह से नहीं कर सकते हैं हैक। तो ऐसे आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बता दीजिए। जी, काफी अच्छा सवाल है आपका और कई लोगों ने इसे फेस भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो आप लगातार अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहें, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ कांटेक्ट में रहें। अगर फेसबुक का आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा है तो कुछ फ्रेंड्स आप ऐसे रखिए जिनके साथ आप हर दिन बातचीत करें, ऐसा कुछ करें तो जैसे ही कुछ भी गलत मैसेज उन तक पहुंचेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। जानने का तरीका ये है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके बिहाफ पे कुछ मैसेजेस जा रहे होंगे, रुचि जी पोस्ट चल रही होंगी और आपको पता भी नहीं होगा। तो फ्रेंड सर्किल के साथ केवल एक ही प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड ना रहें। पहली चीज, आप उनसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहें, फेसबुक पे भी कनेक्टेड रहें, ट्रू कॉलर से भी रहें, किसी और तरीके से भी रहें, जिससे कि वो आपको तुरंत बता दे कि आपका शायद फेसबुक हैक हो चुका है या मुझे मैसेज आया कहीं आपने तो नहीं भेजा। इज़न्ट इट? पहली चीज। दूसरी बात है, कभी कोई मैसेज आपके द्वारा खाली हाय लिख के अगर कुछ आता है तो कभी उसको रेस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि जो भी आपका जानकार होगा, जानने पहचानने वाला होगा, वो हाय करके आपको कभी नहीं लिखेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? वो आपको कुछ भी लिखेगा, आपके नाम से बुलाएगा, कुछ और करेगा, लेकिन हाय जैसे है ना, ओनली हाय लिखता है या ओनली हेलो करके लिखता है, वहां आप तुरंत अलर्ट हो जाए कि कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। दूसरी बात है, हर एक कंपनी की जो आप अगर जैसे फेसबुक है, फेसबुक अगर आप पेज ओपन करेंगे तो उसमें नीचे दिया होता है कि अगर आपके साथ कभी कुछ हो रहा है,
साइबर फ्रॉड हो गया, अकाउंट हैक हो गया, आप उसके साथ कैसे डील करें, उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगे, इवन कुछ लिंक आएंगे जिनके थ्रू अपनी आवाज रेज कर सकते हैं। जी इज दैट इट? ठीक है। दूसरा है कि कभी भी आपको अगर मोबाइल पे अननेसेसरी ऐसे लगातार कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाए जो कि अनवारंटेड है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है होती है, तो कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट कर सकते हैं साइबर सेल से भी, और ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इजंट इट? हाँ तो जी। ये कुछ एक तरीके हो सकते हैं, मतलब, और जितना जितना जल्दी आप जागेंगे, जी जितना जल्दी अवेयर होंगे और उतना जल्दी आप स्टेप्स लेंगे, उतना जल्दी आपकी बचत हो जाएगी, जी आप जी सेफ बिकॉज अभी कुछ टाइम से ना ऐसे अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स आना, हेलो लिख के आना, तो बिल्कुल। वो चीजें हो रही थी। दूसरा है कि मोबाइल में एक चीज और देखें, जब भी आपका कॉल आ रही है तो +91 के अलावा अगर कहीं से भी कॉल आ रही है, स्टार्टिंग में +91 के जी अलावा कुछ जी लिखा जी हुआ है, तो आप तुरंत पहले उसे ट्रू कॉलर और डिफरेंट सोर्सेज से चेक करें कि ये किस कंट्री का कोड है। ठीक है। कभी भी +91 के अलावा अगर कहीं से भी आपको कॉल आ रहा है, +91 हमारे इंडिया का इंटरनेशनल यस पोर्ट नंबर, यस हाँ ठीक जी है, हाँ ISD जी है। तो हाँ जी इसमें आप क्या करें, +91 के अलावा कहीं से भी कॉल आ रहा है, कॉल उठाने की बजाय पहले उस नंबर को गूगल पर जाएं और लिखें किस कंट्री का कोड है। ठीक अगर है। वाकई उस कंट्री का कोई पर्सन आपका रिलेटिव है, जी तो आप उसे व्हाट्सएप से बात कर ले, कैसे, अदरवाइज आप उसे ब्लॉक करके आगे बढ़ें। जी सर जी, थैंक यू सो मच वेरी। एनी अदर क्वेरी? Yeah, participants, any other query from any one of you? सर, मुझे लगता है कि आपका जो टॉक था इतना ही एलॉबरेटिव था कि शायद किसी के पास कुछ ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं, लेकिन जैसे-जैसे हमारे अनुभव होते हैं उसके हिसाब से हम लोग के पास प्रश्न भी होते हैं, और जैसा आपने बताया फील्ड अभी नया है, इसके लिए बहुत सारी अवेयरनेस चाहिए, तो हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे हम प्रोग्राम्स और कराएँगे ताकि हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ, हमारे जितने लर्नर्स हैं, क्योंकि जो हमारा लर्नर का सेट है बहुत हेट्रोजेनस ग्रुप रहता है, ऑल इट फ्रॉम 19 टू 90 ईयर्स, तो इस तरह का हमारा इतना वाइड रेंज होता है लर्नर्स का, और हर तरह की लर्नर्स, जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो भी लर्नर है, बहुत जो फ्रेशर्स हैं वो भी लर्नर है, इस तरह की अवेयरनेस हम सब के लिए ज़रूरी है, स्पेशली इसमें जो गर्ल्स हैं, जैसे आपने बताया गर्ल्स में भी अलग अलग सेग्रीगेशन आपने कर बताया, जो अर्बन है, जो सब अर्बन है, जो विलेज में है, जो हाईवे के पास, मतलब हर एक की अलग ही वो मतलब जो आपकी इकोसिस्टम में अलग इकोसिस्टम से आते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि हम लोगों को हर लेवल पे जुड़ना है, हर लेवल पे जहाँ तक हो सके प्रयास करना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा पाए, ताकि सब साइबर सिक्योरिटी के उसमें स्पेक्ट्रम में रहें, उसकी उसमें रहें, मतलब उसकी सुरक्षा के अंतर्गत हम उनको ला सकें। तो अब अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी कलीग डॉक्टर मीना सिंह से कहूँगी वो धन्यवाद ज्ञापन करें और हमें आपका शुक्रिया अदा करने का मौका दें। जी। Thank you, Dr. Shaini. I am here for propose the formal vote of thanks. Namaskar. I am Meena Singh, Assistant Regional Director, Regional Center Delhi 2. I would like to extend my thanks to, on behalf of Regional Center Delhi 2 and myself, to guest speaker, Professor Vinod Kumar Kanwaria ji, Department of Education, University of Delhi. I would like to thanks to our Senior Regional Director, Dr. D.P. Singh Sir, Regional Center Delhi 2, for the guidance and inspiration for continue the receive, due to which we are able to organize such program. Thank you so much, sir, for your guidance. I would like to extend my special thanks to our students, functionaries of study centers, and our colleagues from different regional centers across the country for their active participation in this webinar. In the end, I would like to thank all the colleagues of the Regional Center Delhi 2 for their direct and indirect cooperation and their presence. So thank you so much, sir. Sir, जिस तरह से मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने साइबर क्राइम्स एंड सेफ्टी के बारे में इन एस्पेक्ट ऑफ वुमेन को एक्सप्लेन किया, वह निश्चित ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जागरूक करने वाला है, और मुझे लगता है कि हम सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाए, वो भी उसको सुनेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालें और अपने फेसबुक पर भी इसका लिंक अपलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। सर, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने सरल शब्दों में, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
और हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर भी आपका इस तरह से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहे और हम आपके इस नॉलेज से साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लाभान्वित हो सके। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम ये मीटिंग इसको हम जो थैंक यू डॉक्टर रिकॉर्डिंग है शाइनी, प्लीज थैंक यू बंद कर डॉक्टर दीजिएगा, मीनाक्षी। इसको रिकॉर्डिंग को। कृष्ण गोपाल जी रिकॉर्डिंग प्लीज बंद कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर विनोद, सी यू समटाइम। थैंक यू।